was India at that time had a substantial fraction of, तो कहाँ की तरफ सोचो, okay, transport also over that time, रखने की कोशिश करो. Now, so East India Company, when it came to India, India at that time was owning city and so on and so forth. Okay, it was a very rich country, had a substantial fraction in the GDP of the world. At that time, the East India Company started trading. जैसे जैसे East India Company started trading, they started becoming rich. They gradually got more and more political and military muscle, and then they had a huge day. 1764, Battle of Buxar took place. Battle of Buxar changed fortunes for East India Company drastically. By 1765, they got the Diwani rights over 3 areas: Bengal, Orissa, and Bihar. आप देखते हो, okay? The Bengal, Orissa, Bihar areas में East India Company got the Diwani rights. Diwani rights होता है. These are the civil revenue, the tax collection rights. Civil revenue, tax collection rights. The Bengal, Orissa, Bihar लिया जो already इतने rich country के rich parts है. तो East India Company was bound to become very very rich. So in rich, they became very rich. हो क्या था? East India Company rich होने के बजाय East India Company के officers rich हो गए. The idea, I hope you're understanding, was gross mismanagement of funds, corruption, etc. And instead of the company becoming rich, जो उनके officers थे, they started becoming rich. Some of them became the richest people in the world. Okay. Instead of the company starting to pay dividends, the company went into huge debt. Huge debt. बहुत बड़ा कर्जा हो गया उनको. Approximately £1 million, approximately उनको उस तरह पे कर्जा हो गया. And they went to the British government. British government was गए. और British government साहब हमको help कर दो. British government was very aghast. ये कैसी कंपनी? Okay, हम लोग ने उनको भेजा in order to make profit over there, more tax revenue. ये debt में आ रहे. And therefore, as a retaliation, the British government started dealing with this company rule. ये जो जमाना था इसको कंपनी रूल का जमाना बोलते थे. कंपनी कौन सी है? ईस्ट इंडिया कंपनी. And to control and regulate the affairs of the East India Company India. मैं फिर बोल रहा हूँ. To control and regulate the affairs of the East India Company India, regulating acts पास किए गए. रेगुलेटिंग एक्ट पास किए गए, उनको EIC एक्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट बोलते. क्यों? यूज लॉजिक. बाय बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी से डील कर रहे हैं. दे वर आल्सो नोन एज चार्टर एक्ट्स. उनको चार्टर एक्ट्स बोलते हैं. बिकॉज मैं ये कैसे करूंगा? हाउ विल आई कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी? दैट वाज डन बाय टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी. व्हाट वर यू डूइंग? केयरफुली मेक अ नोट. Revise the terms and conditions of the charter every 20 years. मैंने क्या बोला? We will revise the terms and conditions of the charter every 20 years. Okay. I hope तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो. What is charter? Charter ये रहा. क्या था charter? It was the exclusive license for trading in India. हम करेंगे इसको revise, terms and conditions करेंगे with regards to every 20 years. उसी तरह से हम करेंगे control and regulation. पहला regulating act was 1773, 20 साल के बाद, 20 years के बाद 1793. Next one was 1813. Next one was 1833, and the last one was 1853. ये मैं क्वेश्चन पहले बहुत पूछ रहे थे, आजकल थोड़ा कम हो गए, लेकिन इन भरोसा कुछ नहीं. Civil services के साथ ask you again the same question, right? So a crucial part is that the regulating acts were passed to control East India Company. How? By revising terms and conditions. पहला regulating act बड़ा कौन था? First regulation act was the first regulating act was 1733. The last regulating act was 1853. Time span between them were 20 years each. Picture clear? यहाँ तक clear? तो I hope everyone is okay with this part. Let's go to the next part. एक और सेट ऑफ क्वेश्चन बड़ा कॉमनली आते हैं. व्हाट इज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1723 ने क्या किया? 18 अच्छा तो दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इज मोर इंपॉर्टेंट देन 1833 मोर इंपॉर्टेंट 1853. बीच में 1790 एंड 1830 को पूछा ही नहीं है, उन्होंने लिखा ही नहीं शायद. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में हुआ क्या? पहले ये तो सब लोग हुआ क्या? इट वाज द फर्स्ट स्टेप टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी. ब्रिटिशर्स तुम्हें नहीं पसंद होंगे, ओके, इन मोस्ट केसेस बिकॉज़ वो हमारे इंपीरियल मास्टर्स हैं, उन्होंने हमको गुलाम रखा है, सो ऑन सो फोर्थ. लेकिन जो क्रूशियल एलिमेंट जो आपको पता होने वाली बात है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि मोस्ट ऑफ इंडियाज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो आज भी है, वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम ब्रिटिश. तो ब्रिटिश ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई, उनमें कुछ चीजें ये थी. ओके, फर्स्ट वन, हाउ वी कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी. यार किसे कंट्रोल करने वाले हो ईस्ट इंडिया कंपनी? तुम वहां बैठे हो, हम यहाँ बैठे, होने लगे कैसे? We created what is called as first step was creating an answerability. हमने स्टार्ट किया, हम मतलब मैं बार-बार हम बोल रहा हूँ, हम इंडियन की बात कर रहा हूँ मैं. We are looking at British, तो थोड़ी देर ले British की तरफ भी कर रहा हूँ. And the British government, okay, तो इसमें आए बोल रहा हूँ. So now the checks and balances का प्रोसेस स्टार्ट हुआ. Checks and balances कैसे होगा? Checks and balances अब होगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी हर पेनी का जवाब देगी, हर डॉलर का, हर रूपी का जवाब देगा. Okay, in other words, that first step to regulate ईस्ट इंडिया कंपनी, भाई तुम्हें एक आंसरिंग अथॉरिटी बनानी पड़ेगी. उस आंसरिंग अथॉरिटी का नाम दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. तो ईस्ट इंडिया कंपनी बोला first you'll appoint a court of directors who will answer to our questions. Okay, who will answer to us. फिर एक और प्रॉब्लम हो गई. First step to centralize क्या centralize? उस टाइम का इंडिया, my friends, had mainly 3 zones of power. 3 zones of power were Bombay, Madras and Bengal. Right? हर एक अपना गवर्नर था, हर एक के अपने एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स थे. इसकी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर, इनकी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर, एंड ऑल ऑफ देम वर इंडिपेंडेंट. ये बुक में देखते रहो, ओके, यू आर इंडिपेंडेंट. Now, by the regulating act of, ध्यान से सुनो मेरी बात, by the regulating act of 1773, the legislative powers of governor of Bombay and governor of Madras
स्टार्टेड, मैंने नहीं बोला एंडेड, मैंने बोला स्टार्टेड, was started to be given to governor of Bengal, यानी कि the governor of Bengal started getting more and more legislative powers, यानी कि we started doing centralization of governance in India. इसलिए the governor of Bengal became, instead of governor, became governor general of Bengal. आप सबको याद है, it was Warren Hastings, बुक में देखते हो, ये सब लिखा हुआ है. ओके, मैं तुमको इससे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ. वर्ड सारे वहां पे मिले, बट 90% लोगों को मालूम नहीं पड़ता इस वर्ड्स का वैल्यू क्या है. गवर्नर ऑफ बंगाल became governor general of Bengal because he started getting more and more powers from governor of Bengal, Bombay and Madras. अब गवर्नर साहब थे वो कैसे काम करते हैं, तो गवर्नर साहब हेल्प करने के लिए गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाएगा. ये 4 मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था. थोड़ा सा जहां पर बैठो ना, जब चिल्ला के अपने को बोलना, मैं बोला गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था. एग्जीक्यूटिव में लेजिस्लेटिव नहीं बोला, दिमाग खोल के सुन लो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल था. दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बोलते थे काउंसिल ऑफ 4, इसके ऊपर 4 मेंबर्स है. इसको कभी कैलकाटा काउंसिल भी बोलते थे क्योंकि कैलकाटा में था. ओके, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, सुनो मेरी बात, was also performing legislative function. तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था, it was also performing legislative function. मेरी बात समझ आई? सचिन तेंदुलकर is a batsman who can also do bowling. What? Yes. सचिन तेंदुलकर batsman who can also do bowling. तो primarily वो कौन थे? सचिन तेंदुलकर primarily batsman. समझ में आया? वैसे ही ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल था which also performed legislative function. It was an executive council also performing legislative function. तो primarily लोग क्या थे? Executive से, right? Narendra Modi Saab is primarily a legislative who also performs executive function. What? Yes, you elected Narendra Modi Saab as a member of parliament. He also is performing executive prime ministerial function. तो मोदी जी प्राइमरी क्या है? Legislative, who is also performing executive function. ये लोग क्या थे? They were primarily executives also performing legislative function. अब मैं तुम्हें पूछूंगा ये सारा सवाल. In other words, 1773 में था executive supremacy और आज है legislative supremacy. ये स्टोरी उल्टी कैसे हो गई? How did this story become ulti? Okay, how did legislative which was weaker became legislative which is stronger today, and how is legislative executive which is stronger has become weaker today? Is the reason. इस जो the Constitution of India पहला चैप्टर है of लक्ष्मीकांत. We are learning from 1773 से लेकर आज तक. How have we inverted the story? How have we made executive supremacy get converted to legislative supremacy? ऐसे पढ़ते हैं friends polity. Okay, ऐसा रटने से तुम्हें पाने वाले हमारे एग्जाम. You understand why are you being taught history of the Constitution of India? Because history of the Constitution of India is nothing else but evolution of how did we convert executive supremacy into legislative supremacy, and this is what you're going to learn from this. Are you understanding this part? Another important problem, and in fact problem ही बोला मैं, was because the establishment of the Supreme Court. First Supreme Court बना, okay, ये establish हुआ फुट विलिंग पे कैलका, okay, और ये जो Supreme Court बना, इसमें उस टाइम पे 4 जस्टिस और इलाहा चीफ जस्टिस बने, ओके, और इनकी वजह से बड़ी मेरी प्रॉब्लम होने लगी. क्यों प्रॉब्लम्स होने लगी? पहले इसको देख ले. तो अब ये रिवाइज हो गया. फर्स्ट स्टेप टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गया. फर्स्ट स्टेप टू सेंट्रलाइजेशन हो गया. गवर्नर जनरल बंगाल बन गया. गवर्नर जनरल इन काउंसिल बन, वो एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी थी, बाद में लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी कैसे बनी वो भी पता चलेगा. एंड सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हो गया. यहां तक चैप्टर है, अपने नोट्स देख लो, अपनी बुक देख लो, इसका आगे एक वर्ड भी नहीं. अब प्रॉब्लम होने लगी सुप्रीम कोर्ट के साथ. जो सुप्रीम कोर्ट था, okay, इसका भी कंपनी ऑफिसर्स पर और द मेंबर्स पर कंट्रोल था, और एक को था द गवर्नर जनरल इन काउंसिल का भी. आई होप अंडरस्टैंडिंग, ये एग्जीक्यूटिव से, ये जुडिशियल था. तो हम लोग सेटलमेंट एक्ट पास करना, हम लोग मैं अपने ब्रिटिश ही समझो, ओके. तो द सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 पास किया. क्या किया गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट आपका नहीं चलेगा, लेट्स लिमिट योर कंट्रोल, वी विल नॉट अलाउ यू टू कंट्रोल, लेट दीस पीपल कंट्रोल. आजकल आर्टिकल 50 बोलते हो, तो इसको तुम्हें मालूम नहीं पड़ा. आर्टिकल 50 में क्या ने बोला? सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. ये जो सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये सब कहां से स्टार्ट हुआ? यहां से स्टार्ट हुआ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसको बोलते हैं कनेक्शन, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेशन. तब हमारी पिक्चर सामने आती. फिर उस टाइम पर ना प्रॉब्लम ये थी, अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, या तुम ईस्ट इंडिया कंपनी हो, और ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आए, 1773 का टाइम चला, 173 इयर्स हो गए, ओके. इसने मेहनत थी इंडिया को बनाने, इंडिया में रूल बना दी ईस्ट इंडिया कंपनी, और तुम आए वहां से घूमते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट, तुम जो स्टार्टिंग पास रेगुलेटिंग एक्ट. तो ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट कोऑपरेट, एंड देयरफॉर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाज नॉट दैट सक्सेसफुल बिकॉज़ ईस्ट इंडिया कंपनी कोऑपरेट ही कर रही. तो हम बोला कोई बात नहीं, मत करो कोऑपरेट. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम वाज पिट्स द यंगर. इसको पिट्स द यंगर बोलते हैं, ओके. पिट्स द यंगर इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ हिज फादर वाज आल्सो द प्राइम मिनिस्टर. समझ में आ गया कौन यंगर कौन ओल्डर है, ओके. सो पिट्स द यंगर ने एक एक्ट पास किया, उसको बोला द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. ये बड़ा डेंजरस एक्ट था, ऑलराइट. उसने पिट इंडिया एक्ट खाना चाहता था, उस द बस. कैसे? ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड किया. द फर्स्ट वर्ड उन्हें वर्ड यूज किया ब्रिटिश पोजीशन. एक बहुत अच्छा वर्ड उन्होंने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी जितनी टेरिटरीज है वो एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट पोजीशन है, राइट. दूसरा, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पावर को बीच में से स्प्लिट कर दिया, राइट, एंड दे क्रिएटेड व्हाट इज कॉल्ड एज डबल गवर्नमेंट.
अब क्या बोला, all commercial decisions will be taken by the court of directors and all the political, military, administrative decisions will be taken by board of control, which in turn will be appointed by the British government. Are you understanding? तो ये अपने आप में बड़ा वीकनिंग इफेक्ट है. So डबल गवर्नमेंट होते ही ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी पावर बड़ी काफी हद तक लिमिट होगी टू द कमर्शियल डिसीजंस इंस्टेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन. एंड देन केम जंप किया 1773 बाद 1793 था, 1830 था. ये सब हमारे लक्ष्मीकांत में दिया हुआ नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड पर जा पूछ भी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग. ऑल्दो वेरी सरप्राइजिंगली आई शुड से 2019 में पूछ लिया 1813 का. ओके, सो वी डू दैट एट लेट स्टेज समटाइम, बट राइट नाउ लुक लेट्स चार्ट दैट. कैन आई आस्क यू वन थिंग, अगर तुम थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहे हो तो मैंने तो अभी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बोला, तो मैंने बोला था लेजिस्लेटिव पावर्स यहां से सब जगह से was now given to Governor General of Bengal, not now given, was started to be given. मैं बोला started to be given. जब सारे के सारे पावर्स given, तो इन लेजिस्लेटिव पावर्स को जीरो कर दिया गया. Okay, all the powers give taken away and give it to the Governor General of Bengal. And instead Governor General of Bengal, he became the Governor General of India. One man show हो गया. Okay, it was one man show. I hope सब मालूम है William Bentinck was the first one. So the Governor General of India बन गया. Hence called as final step of centralization of governance in India. क्या बोलते इसको? Final step of centralization of governance in India. अब मजा है तुमको centralization और decentralization और ये हो क्या रहा है? Why are we studying all this? मजा क्या है? Why are you doing centralization? British government is doing centralization. Why? Because उनको चाहिए थी वर्चस्व, उनको चाहिए था कंट्रोल. They wanted to control India. आज क्या हो तुम्हारे पास? आज तुम्हारा decentralization है. Why? तो चीफ मिनिस्टर आप भी अपना डिसीजन ले रहे हैं. Okay, all the states have been given union list, state list, content list, executive list है. लेकिन ब्रिटिशर्स को क्या था? Britishers wanted control. So centralization एक और वर्ड बोलो. Centralization, my friends, is nothing else but colonization. तो वेलकम माय फ्रेंड्स, तो हो गए कॉलोनी बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833. ब्रिटिशर्स संपूर्ण कंट्रोल आ गया था, वर्चस्व था. ओके, नाउ एवरीथिंग वाज हैपनिंग फ्रॉम बंगाल. द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वन मैन शो इसलिए पढ़ाया जा रहा है. जो सेंट्रलाइजेशन चल रही है, क्या हो रही है? मिलिटरी, द पॉलिटिकल एंड लीगल कंट्रोल ऑफ इंडिया वाज कंप्लीट बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833. लॉस ऑफ एक्ट बोलने लग गए. लॉस ऑफ एक्ट बोलने लगे मतलब पहले वो रेगुलेशन बोलते थे. इट वाज प्राइमरीली एग्जीक्यूटिव, राइट? नाउ इट हैड गॉट लेजिस्लेटिव सैंक्शन, हेंस दे वर कॉल्ड एज एक्ट्स. तो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिवली बना दिया गया. वर्ड यूज किया गया. वो क्या गया? ईस्ट इंडिया कंपनी जितनी टेरिटरीज है वो सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी इज होल्डिंग इन ट्रस्ट हमारी है, हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैं, बट ईस्ट इंडिया कंपनी इज होल्डिंग इन ट्रस्ट. ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833. एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपोनेंट था. ओके, नाउ दिस नेक्स्ट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1853. नाउ इट वाज कॉल्ड एज लास्ट चार्टर एक्ट. अब पहले इसको लास्ट चार्टर एक्ट बनाया क्यों? ओके, कैन आई हैव दिस एंटायर थिंग पार्ट. इसको लास्ट रेगुलेटिंग एक्ट बनाया क्यों? ऐसा क्या हुआ? बट एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम था. यू नो, ब्रिटिश वहां से लॉ पास करते थे और सोचते थे ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल हो गई. ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी. ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही थी. यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस कोवेंटेड सिविल सर्विसेज. तुम लोगों की वजह से. हाँ, तुम लोग, क्योंकि तुम लोग नेक्स्ट ईयर आईएएस ऑफिसर बन रहे हो. उन दिनों देयर वर टू टाइप्स सिविल सर्विसेज. वन वाज कॉल्ड एज लोअर सिविल सर्विसेज, द अदर वन वाज कॉल्ड एज हायर सिविल सर्विसेज. हायर सिविल सर्विसेज को कोवेंटेड सिविल सर्विसेज बोलते थे. एंड ये कोवेंटेड सर्विसेज की कोई ओपन एग्जामिनेशन नहीं होती थी. तो जो एग्जाम तुम अब तैयार कर रहे हो, ऐसी एग्जाम नहीं होती थी. देयर वाज अ हैलेबरी पेट्रोनाज सिस्टम. हैलेबरी नाम का कॉलेज था, जो सिविल सर्विसेज कॉलेज था. तुम उस कॉलेज में एडमिशन हो, तुम ग्रेजुएट हो जाओ, यू विल बिकम अ कोवेंटेड सिविल सर्वेंट. लेकिन दुख ये था दैट वाज नॉट अवेलेबल टू इंडियंस बिकॉज़ देयर वाज नॉट अवेलेबल टू ओपन एग्जामिनेशन. तो तुम्हें हैलेबरी इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो तुमको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से स्पॉन्सरशिप नहीं पड़ती. और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी का था और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए देयरफॉर ब्यूरोक्रेसी वाज वेरी वेरी लॉयल. एंड देयरफॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब से काम चल रहा था वो लॉ पे लॉ पास कर रहे थे. ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही थी, बस ब्यूरोक्रेसी डिस्ट्रॉय नहीं होने देती. ओके, एंड देयरफॉर एक्ट 1853 ने एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया that they made covenanted civil services as an open examination. जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चक्कर है, याद रखना. It was the Act of 1833. बुक में देख लेना. When the first time such a proposal was made, the proposal was made by 1833. But इतना solid opposition था from the East India Company and the Court of Directors. It was finally implemented by the Act of 1853. So first time it was open. Lord Macaulay की कमी देखी, looking at book तो मेरे पास ये सारी चीजें. तो लॉर्ड मैकॉले के एक रिकमेंडेशन के बेसिस पे फर्स्ट टाइम ओपन कोवेनेंटेड सिविल सर्विस, कोवेनेंटेड हायर वन नॉट लो वन, कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज फॉर द इंडियन आल्सो, इन फॉर एवरीवन हु कुड टेक दिस ओपन एग्जामिनेशन. एक्ट ऑफ 1853 को लास्ट चार्टर एक्ट किसे बोला? बिकॉज उन्होंने सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाया. एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया, उसको नाम दिया गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. उसके मेंबर्स है काउंसिल्स और इनके पास करीब करीब वो सारे फंक्शंस और ड्यूटीज थे आजकल हमारे पार्लियामेंटेरियंस के लिए थी. उसको बोला कि मिनी पार्लियामेंट. एक इंपॉर्टेंट बात दिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला that we are given indefinite extension to East India Company, they can keep holding our properties in trust. इन अदर वर्ड्स में बोला भाई इनके पास जाग तो कुछ है नहीं, पावर तो रही, let them hold in trust the properties and etc. वर्क ये लोग कर रहे हैं. इन अदर वर्ड्स there was indefinite license to East India Company. तो why last charter बोला था? Because there was no further need. ऐसा कोई नीड रहा नहीं था टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी एंड लास्ट चार्टर एक्ट किया. किसको मालूम था कि वक्त करवट क्या है? Who knew the destiny? Because
1853 में तुम दिया लास्ट चार्टर एक्ट, इंडेफिनिट लाइसेंस टू ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड 5 साल के बाद, 4 साल के बाद फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया. ओके, दिस इज पॉपुलरली कॉल्ड, इसको वो लोग हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, वो लोग इस म्यूटिनी बोलते हैं, द सेपॉय म्यूटिनी, यू नो, दे कॉल इट द रिवोल्ट्स, दे कॉल इट गावर, व्हाटएवर यू कॉल दैट. एंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रॉट, ओके, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रॉट इंडियन इंचेस अवे फ्रॉम लूजिंग इंडिया, इंचेस. उनके लिए बड़ा जरूरी था. वी आर द मनी, वी आर द कैश कॉस्ट फॉर, हम लोग उनको पैसा देने वाले थे. अभी वो वॉर फुटिंग पे, दे वांटेड टू बिकम इंपीरियल मास्टर. सो ये जब हमको झटका लगा, इसमें बहुत सारे रीजन है, लॉर्ड लाउजी डॉक्ट्रिन ऑफ एप्स एक्सेट्रा, यू नो, द P-53 फील्ड राइफल एंड मंगल पार्टी इंसिडेंट एक्सेट्रा, बट नॉट नेसेसरी. इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था दैट द गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ इंग्लैंड वाज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. उन्होंने एक एक्ट पास किया, दैट एक्ट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बहुत क्रूशल चीज था. सबसे पहले उन्होंने निकल दिया गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल हटाकर उन्होंने बना दिया वर्ड वाइसरॉय. ओके, सो वाइसरॉय रिप्लेस द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल. भाई ये क्या है, व्हाई वाइसरॉय हटा दो, व्हाई गवर्नर जनरल. कीप लुकिंग एट द बुक. वाइसरॉय इसलिए वर्ड यूज किया बिकॉज़ वाइसरॉय वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन. ही वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन. नाउ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को नाम दिया गया एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया. भाई गुड गवर्नमेंट इन इंडिया ये क्या है, व्हाट इज गुड गवर्नमेंट? ब्रिटिश ऐसे बच्चों की बातें ना करेंगे कि गुड गवर्नमेंट इन इंडिया. गुड गवर्नमेंट मतलब ऐसा हो कि अगर ये गुड गवर्नमेंट है तो ऑटोमेटिक मतलब सब बैड गवर्नमेंट. नो, ऐसा नहीं था. ये गुड गवर्नमेंट आती, इट वाज रिस्पांसिबल गवर्नमेंट. इट वाज अ रिस्पांसिबल गवर्नमेंट. व्हाट इज अ रिस्पांसिबल गवर्नमेंट? इट वाज एन आंसरेबल गवर्नमेंट. तो बोला क्या कि हम लोग लंदन में, इंग्लैंड में, पार्लियामेंट में एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाएंगे. इट विल बी 15 मेंबर काउंसिल व्हिच विल बी एन एडवाइजरी बॉडी, जिसको हेड करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर होंगे. और कैबिनेट मिनिस्टर होंगे वो आंसरेबल टू द पार्लियामेंट होंगे. विल बी द आंसरेबल टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड. मेरी बात समझ में आई है? सो यू आर आंसर. तो हो क्या है, स्टोरी जैसी बन गई. प्लीज ध्यान सुनो, स्टोरी एक जैसी बनती जाइए. राइट, द स्टोरी हियर इज दैट इंडिया में विल द वाइसरॉय, जिसको इंडिया में सारे ऑफिसर्स फाइनली आंसरेबल होंगे. इंग्लैंड में देयर विल बी अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड ही विल बी आंसरेबल टू द पार्लियामेंट. साथ में क्वीन विक्टोरिया ने अपने आप को अनाउंस कर दिया दैट आई एम गोइंग टू बी एम्प्रेस ऑफ इंडिया. नवंबर ऑफ 1858 में शी मेड अ प्रोक्लेमेशन. इसको बोलते हैं प्रोक्लेमेशन, द क्वीन प्रोक्लेमेशन, रॉयल प्रोक्लेमेशन बोला गया. ओके, ऑफ 1858 अलाहाबाद में अनाउंस हुआ, प्रोक्लेमेशन हुआ, द क्वीन विक्टोरिया शैल बी द एम्प्रेस ऑफ इंडिया. इन अदर वर्ड्स, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहां पे नाम दिया गया HMG, हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट. इन अदर वर्ड्स, एक आंसरेबिलिटी थी. Everyone will answer to the viceroy, viceroy will answer to the secretary of state, secretary of state will answer to the parliament. This is called as a responsible government. A responsible government is an answerable government. An answerable government is a good government. Congratulations, my friends. हिंदुस्तानियों, तुम्हारे सी में पहली बार आंसरेबल गवर्नमेंट है. ये लोग बोलना चाह रहे थे. ओके, वी आर गिविंग एन आंसरेबल गवर्नमेंट डियर ब्रिटिश इंडियंस. तुम आज तक इसने आंसरेबल गवर्नमेंट दिए, हम तुम्हें दे रहे हैं. राइट, वी आर गिविंग. तुम पहले शाहजहां से पूछ सकते थे तुम ताजमहल क्यों बना रहे हो, नहीं पूछ सकते. क्या तुम सुल्तान से पूछ सकते थे तुम XYZ वॉर पे क्यों पैसा खर्च रहे हो? नो, बट वी आर गिविंग एन आंसरेबल गवर्नमेंट. ओके, वो बात लगे कि इट स्टार्टेड ऑन पेपर, यहां गुड गवर्नमेंट वो हुआ कि नहीं वो बाद में देखे. अपार्ट फ्रॉम दैट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को के साथ एक काउंसिल व्हिच वाज कॉल्ड एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, तो उनका सपोर्ट था दिस इंडियन काउंसिल. उसको बनाया गया बॉडी कॉर्पोरेट. बॉडी कॉर्पोरेट तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, इट मींस कैन सू और बी सू. तुम अपनी सरकार पे केस कर सकते हो और सरकार तुम पे केस कर सके. दिस वाज आल्सो न्यू चेंज. इससे पहले ऑब्वियसली हम शाहजहां पे ना केस कर सकते. द पॉइंट वाज दैट इट मेड अ बॉडी कॉर्पोरेट. तो आइदर वे, चाहे इस तरह से देखो चाहे इस तरह से, यू आर मेकिंग अ रिस्पांसिबल गवर्नमेंट. कोई फायदा नहीं उसका. द एक्ट ऑफ 1858 मोस्टली गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को कुछ नहीं चेंज कर पाया, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइनिंग का था. इट इज देयरफॉर क्रिटिसाइज्ड. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 ब्रिटिश ने अपने खुश करने के लिए किया था. नथिंग चेंज मच ऑन ग्राउंड. Changing of the ground, I think, was by the later part. This was the first viceroy, Lord Canning. Lord Canning ने, जिसे तुम्हारे बुक्स में देखते जाओ, okay? Lord Canning प्लान था, let's get Indians involved in the government, right? And for that, British started passing what called as Indian Councils Act. जो पहला था 1861, दूसरा 1892, तीसरा 1909. You know, ये याद रखना. 1861, 1892 and 1909 के दो functions थे actually. Get more and more Indians involved and develop and evolve the legislative councils. Legislative councils को evolve करो and get more and more Indians involved. पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. पहली बार, राइट, यू स्टार्टेड हैविंग इंडियंस सिटिंग इन द एक्सटेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो इंडियंस बैठे रहे, बट इनको नाम दिया गया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, बिकॉज़ इनके पास एक्चुअली कोई पावर नहीं थी. ही वाज नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय. ये जो टेक्निकली हिस्टोरिकली स्पीकिंग द राजा ऑफ बनारस, हमारी बुक में है, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव. ये तीन थे जो फर्स्ट 3 मेंबर्स इंडियंस बैठे वो नॉन ऑफिशियल में. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हुई, इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हुई, वो थी डिसेंट्रलाइजेशन. में याद अभी ने थोड़ा टाइम पे किया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे. सारे पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स इनके पास थे. इन लॉर्ड कैनिंग ने ये पावर्स रिटर्न करनी स्टार्ट कर दी. वाओ, ही स्टार्टेड रिटर्निंग.
started, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, started return, ये end of returning बहुत लेटर हुआ था 1937 में, just after the Government of India Act 1935, okay, तो Government of India 1935 और 1937 में ये end हुआ था, मेरी बात याद रखना। First step of centralization 1773, last step of centralization 1833, first step of decentralization 1861, last step of decentralization 3537, decentralization start हुई। अब वाइसरॉय को पास मिले कि वो ट्रांजैक्शन रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट बनाएगा, ओके, ही विल रिकॉग्नाइज पोर्टफोलियो सिस्टम, लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम 1859 में दे दिया, लेकिन 1861 वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन था, बाय दिस एक्ट इसको एक लेजिस्लेटिव प्रोटोकॉल मिला। और ये ऑर्डिनेंस, वो जो ऑर्डिनेंस आज है हमारा करीब करीब वैसे था, एग्जीक्यूटिव मेकिंग लॉस व्हेन द पार्लियामेंट इज एब्सेंट, ये ऑर्डिनेंस सिस्टम तब भी 6 मंथ्स का एनफोर्स था, ये इंडियन काउंसिल एक्ट था। और इंडियन काउंसिल एक्ट, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 फिर नेक्स्ट हुआ, उसमें स्ट्रॉन्गर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाना स्टार्ट किया। स्ट्रॉन्गर क्या मतलब, हमने उनको बोला डिस्कस बजट को, आस्क द एग्जीक्यूटिव, ही कैन आस्क क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, वी कैन स्टार्ट आस्किंग, थोड़ी पावर्स बढ़ी रही, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को कोई पावर्स नहीं, थोड़ा सा और यहां पर चीज हुई। पहले सिर्फ वाइसरॉय जो था वो अपॉइंट करता था मेंबर्स को, ओके, नॉमिनेट करता था। अब क्या बोला, रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो स्टेट है, जो आजकल विधानसभा बोल रहे हो, ओके, द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव बॉडी काउंसिल्स एंड बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, बड़ी बड़ी ट्रेड एसोसिएशन की भी रिकमेंडेशन लेगा वाइसरॉय बिफोर ही नॉमिनेट्स मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। दूसरा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनते टाइम हम जमींदार, ट्रेड यूनियन, यूनिवर्सिटी, इनका भी हम रोल लेंगे, हम इनकी रिकमेंडेशन लेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्प्रेड आउट होने लगा कि वाइसरॉय से दूर आने लगे, और इसको हम लोग ने समझने के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन समझे। वर्ड इलेक्शंस का यूज नहीं हुआ, लेकिन यही जो नॉमिनेशन के लिए रिकमेंडेशन था ना, इसको हमने फर्स्ट टाइम सोचा कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, तो थोड़ा चेंज होने लगा 1861 से 1892। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बुक नहीं लिखा, लेकिन आई कैन स्टॉप माइसेल्फ फ्रॉम टेलिंग दिस। Very important role in 1892 was because of the effect of 1885 Indian National Congress. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेशर पड़ने लगा था ना, वो यहाँ बड़ा सक्सेसफुल होने लगा। और फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसको बड़ा पॉपुलर मॉडल इंटर रिफॉर्म्स होते हैं। थोड़ा सा इसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस वाज दो तीन बड़े सुपर सी चीजें, एक लॉर्ड कर्जन ने वो किया था, दैट वाज द बंगाल पार्टीशन, एंड वेरी गुड पार्ट वाज एस्टैब्लिशमेंट मुस्लिम लीग एज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो इंडियन काउंसिल एक्ट मॉडल इंटर रिफॉर्म्स, मॉडल इंटर रिफॉर्म्स से थोड़ा समझ आएगा, जो अभी हम थोड़ी देर बताया था। Secretary of State of India was Morley and Minto was Lord Minto the Viceroy। तो ये ज्यादातर जो कॉम्बिनेशन ये मोर्ले मिंटो की थी। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद और रखना, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया बिकम वेरी पावरफुल ऑफिस, जो वो डबल गवर्नमेंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ओके, अगर मैं याद है जो पिट्स एंड एक्ट के टाइम पे था, उनकी दोनों की पावर सेक्रेटरी स्टेट की थी, तो इट्स अ वेरी पावरफुल ऑफिस। ना मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की अचानक स्ट्रेंथ बढ़ गई, जो पहले 60 थी अब 60 हो गई। प्रैक्टिकल स्पीक, इनफैक्ट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के उसका भी नंबर्स से वेरिएबल थे, किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन पॉइंट वाज दैट द सो कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल बिकेम वेरी एनफोर्स्ड, वेरी स्ट्रांग इन दिस पार्ट, ओके। However, ये लॉर्ड मिंटो साहब के दिमाग में कुछ और चल रहा है, ये पुराना डिवाइड एंड रूल मेथड था। He created a separate electorate for certain communities and also he had communal electorate system, जिसको हमने जरूर पढ़ा होगा, that was a separate electorate system for Muslims and so on and so forth. That is why Lord Minto criticized the father of communal electorate system in India। ये इनका डिवाइड एंड रूल टेक्निक था, और वो इसीलिए था जो ने इसलिए मैं बैकड्रॉप बताया, because of the establishment of Muslim League। तो ये he wanted violate और he rather wanted to misuse those powers जो हमारे हिंदू मुस्लिम बीच में डिसयूनाइटेड काम करवाना चाहते थे। So he wanted to disrupt that part। ना थोड़ा सा सोचो माय फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 1773 से जो स्टोरी स्टार्ट हुई, 1773 से जो स्टोरी स्टार्ट हुई, 1909 तक पहुंच गए, क्या मिला है तुमको? नथिंग, नथिंग मींस नथिंग, ओके। अंडरस्टैंड हिस्ट्री द वे दिस इज। अभी तुम उनकी मर्जी पर रिकमेंडेशन हुआ है, अभी तुम्हें हार्डली कुछ पावर्स मिली है, उल्टा वो सेपरेट इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम ये कर रहे हैं, नथिंग वाज फंक्शनिंग। 1909 है, आज तुम अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो 1940 में तो हम आजादी हुए थे, अगर आज हम रेट्रोस्पेक्टिवली देखें तो 38 इयर्स में ऐसा क्या हो गया जो पिछले 200 साल के कहीं में नहीं हुआ था। What was happening? The great man arrived. Okay, the great man arrived. The great man was Mahatma Gandhi arrived. Okay, Mahatma Gandhi arrived, and Mahatma Gandhi gave us the direction or the route map for the independent structure। तो बहुत सारी चीजें महात्मा गांधी की वजह से ये कंट्री इंप्रूव हो गई। देखो प्लीज समझो इस बात को, स्टोरी बड़ी क्लियर है। ओके, कंपनी राज स्टार्ट हुआ, ओके, फ्रॉम द पीरियड दैट वी हैड सेड कि बनाने लगे। अब 1773 आया, 1793 आया, 1813 आया, 1833, 1853, देन वी हैड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया ना माय फ्रेंड्स, इसे ऐसे याद रख लेना, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ क्राउन राज। इसको ब्रिटिश राज बोलते हैं कि द ब्रिटिश राज शुरू एंड कंपनी रूल ओवर। कंपनी रूल क्यों ओवर? बिकॉज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 ने। लेकिन यहां से जाने के बाद भी कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई। 1861, 1892, 1909 ये सारे के सारे स्टेप्स थे, कहीं से नहीं दिख रहा था दैट इंडिया विल बिकम अ सॉवरेन कंट्री, कहीं से नहीं। थैंकफुली
In the next part of our series, we will understand how Mahatma Gandhi actually gave us the roadmap. ये सब चीजें ज्यादातर औपचारिक थी, formalities थी, okay? Yes, they were added, but it was primarily for British's convenience rather than giving us our freedom. So it was the arrival of Mahatma Gandhi which will make the next part of this video more applicable to understand. And then only at the end of that day, that moment, we can ask each other whether he is correctly mentioned as or recognized as the father of the nation. Let's understand, not politically, but by polity. Right? So what is the summary? There is changing tha, but बहुत slow tha. Okay, it was very slow. लग रहा था कि independence है? I don't think so. Right? Direction was given by Gandhi, and that direction we studied later by Government of India Act 1919, the Government of India Act 1935, the India Independence Act 1947, and congratulations, one day you will become independent. So in the next part of this book, तुम्हारे book साथ ही जा रहा हूँ. Okay, I hope you are understanding कि आपको कैसे पढ़नी है history. Okay, understand, connected. ये collection of facts and events नहीं है. It is polity. ये book polity का first part है. Understand this. Rule here is हमें समझना है how did we develop the system of governance that we have today. Starting from that part. मैंने जो लास्ट वीडियो खत्म किया था, so if recall और नहीं देखा है तो प्लीज देखो, okay? Because this is a story which goes on in sequence. जब हमने लास्ट किया था मैंने बोला now महात्मा गांधी arrives in the picture. तो महात्मा गांधी arrives in the picture, इसका क्या एस्पेक्ट है? Why are we discussing महात्मा गांधी in this story only? Please understand. When I say महात्मा गांधी, I do not by any means discount the fact कि इस फ्रीडम स्ट्रगल में हजारों लाखों लोग okay इन्वॉल्व थे, हजारों लीडर्स इन्वॉल्व थे, सुभाष चंद्र बोस इन्वॉल्व थे, नेहरू जी थे, एवरीवन, नेम इट, पटेल साहब एंड नेम इट। बस वो लिस्ट नहीं है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ओके, क्योंकि हिंदुस्तान के हर घर ने उसमें स्ट्रगल किया। मेरा पॉइंट यहाँ पे महात्मा गांधी से सिर्फ इसलिए था बिकॉज ही वाज अ मास कम्युनिकेटिंग लीडर एंड दिस इज ओनली एन एग्जांपल और एन इंडिकेशन ऑफ एवरी सच लीडर जिन्होंने यही किया। लेकिन महात्मा गांधी कोइंसिडेंटली केम एट वन टाइम जब दुनिया चेंज हो रही थी विद रिगार्ड्स टू हमारा फ्रीडम स्ट्रगल। पहले बात को समझ लेते हैं कि हमारे महात्मा गांधी का ये पॉइंट उठा इसलिए, बिकॉज मैं ये लास्ट में पूछूंगा तुम्हें, राइट? उठा इसलिए बिकॉज इंडिया वाज कॉलोनी, ओके, प्लीज अंडरस्टैंड। सो इंडिया वाज कॉलोनी और इंडिया को बनना था इंडिपेंडेंट। यहां से लेकर यहां तक का जो सफर है, कॉलोनी से लेकर इंडिपेंडेंट बनने का जो सफर है, वो अचानक नहीं हो जाने वाला। ब्रिटिशर्स को तुम उठा बाहर नहीं फेंक सकते। सो देयर हैज टू बी अ सीक्वेंस, देयर हैज टू बी अ रोड मैप, एंड दैट रोड मैप वाज very difficult in the reason that it was very difficult to understand. तुम लोग इतने एक्सपर्ट स्टूडेंट्स हो, आईएएस एस्पिरेंट्स हो, तुम यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हो, तुम सब कुछ आ रहा है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग अगर मैं एक पोल ले लूं, वो अभी तो आधे घंटे में तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि व्हाट इज टेक्निकली अ डेफिनेशन ऑफ द वर्ड कॉलोनी। उसके बाद हमने बनना था बीच में डोमिनियन, एंड देन वन फाइन डे वी हैड टू बिकम इंडिपेंडेंट। अगर मैं तुम्हें ना समझाऊं ना तो तुम्हारे यहां पर एक स्प्लिट पोल हो जाएगा। एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कॉलोनी, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ डोमिनियन, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पता करने में तुम बड़ी मेहनत लगने वाली है। वो मैं तुम्हें बताऊंगा 30 मिनट्स में। मैं से कोई बोलेगा सामने तो आता है, हो सकता है तुम 1% जीनियस है, 90% ऑफ हिंदुस्तान को आज भी मालूम, चलो तुम्हें मालूम भी हो। तो पॉइंट यहां पे ये है, लेट्स गो बैक टू 1909, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। 6% 7% लिटरेसी रेट था इंडिया का। कैसे उनको पता चलेगा कि कॉलोनी से लेकर यहां तक जाने के लिए बहुत सारे टेक्निकल हर्डल्स क्रॉस करने पड़ेंगे। क्यों टेक्निकल हर्डल्स क्रॉस करने पड़ेंगे माय फ्रेंड्स? बिकॉज तुमको ब्रिटिशर्स ने मिलिटरली स्लेव नहीं बनाया हुआ था, पॉलिटिकली एंड लीगली स्लेव बनाया हुआ था। सो व्हाट इज अ कॉलोनी? अ कॉलोनी इज व्हेन अ स्ट्रॉन्ग स्टेट कंट्रोल्स अ स्मॉल और वीकर स्टेट बाय पॉलिटिकल एंड लीगल मीन्स। ये आपके ऊपर पॉलिटिकल एंड लीगल ऑक्युपेशन थी। तुम्हें याद होगा हम लोगों ने पीछे बात किया था, दैट इज एक्ट 1833, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस। देयरफॉर माय फ्रेंड्स, हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल प्राइमरीली पॉलिटिकल एंड लीगल था, नॉट मिलिटरीली था। इसीलिए इसे रेवोल्यूशन नाम नहीं दिया गया, इसे नाम दिया गया फ्रीडम स्ट्रगल। और जब पॉलिटिकल एंड लीगल होता है तो तुम समझ सकते हो कानून की भाषा होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा होती है, लीगैलिटी की भाषा होती है। समबडी हैज टू एक्सप्लेन इट टू। मुझे तुम्हें यह समझाने में अभी कितना समय लगने वाला है वो अभी देख लेते हैं। तो यही सोचो, महात्मा गांधी मास लीडर्स ने ये 6% 7% लिटरेसी वाले देश को समझा दिया। डू यू अंडरस्टैंड इनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है? दे गिव अस व्हाट इज कॉल्ड एज द रोड मैप टू इंडिपेंडेंस। कैसे चाहोगे कॉलोनी से लेकर इंडिपेंडेंस तक, कैसे चाहोगे पॉलिटिकल लीगल ऑक्युपेशन से बिकमिंग पॉलिटिकली एंड लीगली sovereign. This is the story that I want to start. 1990 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1990 के आसपास वर्ल्ड वॉर 1 played a very crucial role. World War I 1915 to 1919 वाला ये जो वर्ल्ड 1915 onwards जो स्टार्ट हुआ, उसमें चक्कर क्या हुआ कि the Britishers became weak. They got embroiled in this European war and started becoming weak. Plus Gandhi had arrived from
South Africa, and Congress got a new color or a new idea of enforcing what they thought was our requirement. They thought कि हमको सबसे पहले चाहिए what is called as provincial autonomy. क्या चाहिए सुनते हो, मैंने बोला provincial autonomy. मेरे फ्रेंड्स, अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा, you will miss the bus. The point here is India was under political and legal occupation. समझने की कोशिश करो, रटो मत. Okay. इंडिया में जो कॉलोनाइजेशन हुई थी वो सेंट्रलाइजेशन की वजह से हुई थी, जो एक्ट ऑफ 1833 वगैरह वगैरह में आपने देख लिया. अगर मुझे आजादी के स्ट्रगल को कोई और नाम देना है ना, तो उसको नाम ये देना चाहिए, इट इज अ स्ट्रगल फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. प्रोविंसेस को जिनकी लेजिस्लेटिव पावर्स ले ली गई है या उनकी वजह से एग्जीक्यूटिव पावर्स भी कम हो गई है, लेजिस्लेटिव पावर्स वापस आनी चाहिए. इसीलिए सबसे पहले हमको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी डिमांड करनी है. टेक्निकली समझो इस बात को. देयरफॉर मोंटाग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पास किए गए. मोंटाग्यू-चेम्सफोर्ड, दिस वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दिस वाज द वाइसरॉय. इनको पॉपुलरली मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं. मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स में सबसे पहले हम लोगों ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की डिमांड करनी स्टार्ट की थी. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 में पहले लेजिस्लेचर लिस्ट सेपरेट कर ली गई. ओके, लेजिस्लेचर लिस्ट इन द वे लेजिस्लेचर लिस्ट में जो फेडरल लिस्ट थी वो अलग हो गई एंड द प्रोविंशियल लिस्ट वो अलग हो गई. You understand? Provincial subjects, however, के साथ एक बड़ा मेजर गेम किया गया. They were converted into reserved and transferred list, depending on whether the advice of the Council of Ministers or advice of the ministers was binding on the viceroy or not. अगर पहले ध्यान से सुनो, इसको डिवाइड कैसे करें? फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, एंड प्रोविंशियल लिस्ट अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. रिजर्व लिस्ट, दैट इज विदाउट द कंसेंट ऑफ द मिनिस्टर, और ट्रांसफर लिस्ट, दैट इज विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर. इस प्रोसेस को डायाची बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? डायाची. बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है. ओके, लेटर स्टेज हम लेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइकैमरलिज्म एंड डायाची? डायाची मतलब जॉइंट है. ओके, इट इज अ जॉइंट डिवीजन. रोम में होता, स्पार्टा में होता था, वहां से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ. हम लोगों ने मांगा था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इन्होंने दे दिया डायाची. ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस. दूसरा इन्होंने बोला हम तुम्हें दे रहे हैं बाइकैमरलिज्म. व्हाट डज दैट मीन? दैट द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि मेन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अब उसमें तुम्हारे पास काउंसिल ऑफ स्टेट भी होगा और हाउस ऑफ पीपल भी होगा. काउंसिल ऑफ स्टेट को आजकल हम राज्यसभा बोल रहे हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, प्लस देयर विल बी अ हाउस ऑफ पीपल आल्सो. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. मैं क्या मांग रहा हूं? मैं तुमसे क्या मांग रहा हूं? मैं मांग रहा हूं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की दो कंपोनेंट्स. नंबर वन इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ पावर एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज बाइकैमरलिज्म. तो ब्रिटिश से महात्मा गांधी एंड द रेस्ट ऑफ द कांग्रेस स्टेट हमको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दो मेन कंपोनेंट्स है. नंबर वन इज डिवीजन ऑफ पावर, नंबर टू इज द बाइकैमरलिज्म. तो ब्रिटिश अच्छा दे तो क्या हम तुमको दे दिया, ये तो हमने तुम्हें दे दिया है, व्हाट इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ पावर. अब तुम्हारा फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट है. राइट, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द पावर्स वर केप्ट इन द फेडरल लिस्ट, और उसी तरह से प्रोविंशियल लिस्ट में जो रिजर्व लिस्ट थी, दैट वाज द वन जिसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट पावर्स थी. वी वांटेड अ ट्रू डिवीजन ऑफ पावर. इन्होंने हमको क्या दिया? अ वेरी फॉल्स डिवीजन ऑफ पावर. फिर इन्होंने बोला आप बाइकैमरलिज्म दे दिया, गांधी कोई प्रॉब्लम नहीं है. काउंसिल ऑफ स्टेट्स however had an advisory body, was only an advisory body, unlike your Rajya Sabha right now. Are you understanding? So this was not the provincial autonomy that we were expecting. Hold on. उसके साथ इन्होंने कंटेक्ट किया कुछ काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में बोला कि 3 out of 6 will be Indian. सेपरेट इलेक्टोरेट, तो मैं ये 1909 जो मुस्लिम्स सेपरेट इलेक्टोरेट था, वाज एक्सटेंडेड टू 6 एंग्लो इंडियंस एटसेट्रा. लिमिटेड फ्रेंचाइज दिया गया, 10% ऑफ इंडियंस को वोटिंग राइट्स दिया. एक और इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं अभी बता दूं कभी काम आएगा. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ब्रिटिशर्स को कभी भी नहीं दिया. तो ये लेटेस्ट स्टेज हम सेकंड फीस करेंगे, तब याद रखेंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देना है. डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया था हम लोग के लिए. हाई कमीशन फॉर इंडिया एस्टैब्लिश लंदन में, और तुम्हारा सीपीएससी व्हिच इज नाउ योर यूपीएससी, दैट इज सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश हुआ. से बजट सेपरेट प्रोविंशियल बजट हुआ, सेंट्रल बजट प्रोविंशियल बजट में सेपरेशन हो गया. द पॉइंट वाज हम लोगों ने मांगा था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनो. इन लोगों ने हमको फॉल्स सेंस ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दिया, ना तो ट्रू डिवीजन ऑफ पावर दिया, ना ट्रू बाइकैमरलिज्म दिया. तो ये लोगों ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का नाम बनाया, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 एंड गिव इट टू गांधी एंड रेस्ट ऑफ द कांग्रेस. And they said, देखो गांधी तुम मांग रहे थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, देखो हमने तुम्हें दोनों दी. Are you now happy? गांधी said, we'll see, देखते. When we noticed that carefully, we noticed कि इन दोनों प्रोविंस मेरे पास प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो आने से रही. This is not. In other words, Britishers were still playing the games. Gandhiji became very, very angry about it and launched what is popularly called as non-cooperation movement. Are you understanding? So do you realize that non-cooperation movement, etc., everything has got a political and legal requirement here. Now, non-cooperation movement, although तुम लोग मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हो, okay, since you learn history also, so we realize that चौरा के बाद थोड़ा सा stop होगा and so on so forth. But non-cooperation movement वगैरह की वजह से Britishers को ये समझ में आ गया that India has started understanding the road map. 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में ऑलरेडी ये डिसाइड था 10 इयर्स में ब्रिटिशर्स विल रिवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999 रिवाइज करेंगे. लेकिन इतना स्ट्रगल हुआ कि 10 इयर्स नहीं 2 साल पहले उन्होंने साइन कमीशन बोला गया. ओके, बिकॉज इतना कॉम्पिटिटिव, इतना ज्यादा
ऑपोजिशन हो गया टू एंटायर जीओआई 1918. इट वाज अ कंप्लीट फेलियर. दैट 1927 साइन कमीशन बोला गया. 7 member commission was what जॉन साइमन का हेड कर. एंड बट वेरी फनी पार्ट वाज दैट देयर वाज नो इंडियन. ओके, ब्रिटिश भी कॉल करते थे. You know, they made a Simon Commission, they made a revision of a law. हमारे काम आने वाला, but they did not keep in India. तो अगर थोड़ा याद लाला लाजपत राय वाला इंसिडेंट, साइमन गो बैक, वापस जाओ, all that was because of opposition to Simon Commission. साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी वो 1930 में टेबल की, राइट? उनको 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में यूज किया गया एंड फाइनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन एक व्हाइट पेपर रिलीज किया गया ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. This white paper, which was released, became the foundation of the most important act of India, and that was Government of India Act 1935. बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए आते हैं. The most important source of the modern constitution, GOI Act 1935. हमारा 50-60% of modern constitution almost exactly copied from GOI Act 1935. इसने क्या प्लान किया? इस एक्ट ने प्लान किया हम बनाएंगे ऑल इंडिया फेडरेशन. मेरी बात ध्यान से सुनो. फेडरेशन क्या है? A combination of states, you know, which will form or recognize a particular union. उस टाइम what I'm about to tell you, my friend, is stopper material, please understand. उस टाइम पर 2 प्रोविंसेस है, 2 पार्ट्स इंडिया के. One of provinces, one of रजवाड़ा, so popularly called as the princely states. एक्चुअली जिसको हम कॉलोनी बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ टेक्निकली स्पीकिंग प्रोविंसेस है. जो रजवाड़ा थिंग का अरेंजमेंट अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी. दैट वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी. डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी में ब्रिटिश के साथ एक एग्रीमेंट था जिसकी वजह से रजवाड़ा विद इन द रजवाड़ा, सो विद इन द राज, वो प्रीटी मच इंडिपेंडेंट. सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स से, सिर्फ एक्सटर्नल डिफेंस के लिए उनको ब्रिटिशर्स का सुनना पड़ता था. ओके, इन अदर वर्ड्स दे वर नॉट टेक्निकली कॉलोनी. इनके लिए कुछ और करना था. अगर प्रोविंसेस को आजाद होना था, प्रोविंसेस को चाहिए थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. लेकिन अगर रजवाड़स को आजाद होना था तो उनको ये एग्रीमेंट ऑफ स्यूजेनिटी तोड़नी थी. It was an agreement which was called as agreement of suzerainty using doctrine of paramountcy. वो एग्रीमेंट से स्टेट्स को, सॉरी द प्रिंसली स्टेट्स को वापस आना था. प्रोविंसेस की अलग रिक्वायरमेंट, रजवाड़ा की अलग रिक्वायरमेंट. Therefore, ऑल इंडिया फेडरेशन करने के लिए जब प्रोविंसेस एज वेल एज प्रिंसली स्टेट दोनों का कंट्रीब्यूशन चाहिए. पहली बार जीओआई एक्ट 1935 ने फेडरलिस्ट, प्रोविंशियलिस्ट एंड कंकरेंटली द ट्रू डिवीजन ऑफ पावर. देयर वाज नो डायarchy. जो पुराना वाला स्टोरी था, इन डायarchy उल्टा कर दिया लोगों ने. इन्होंने डायarchy कॉन्ट्री कोशिश की दैट इट गोस इनटू द फेडरल पार्ट. प्रोविंशियल इससे डायarchy हटा दी गई. पॉइंट वाज वी गॉट बैक आवर डिसेंट्रलाइजेशन. अगर प्रीवियस वाले वीडियोस याद है तो 1723 में जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और 1833 में मैक्सिमम हुआ था. 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ. 1935 में डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीट हुआ. कुछ बुक्स बोलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1937 में हुआ था. Either it doesn't matter. We got back decentralization. In other words, my friends, you are now provincially autonomous. But फिर भी नहीं बना ऑल इंडिया फेडरेशन. ये तुम्हें क्वेश्चन आता है, why did Government of India Act 1935 fail to form a federation? Because princely states said no. Okay, provincial autonomy मिल गई लेकिन the princely states said no because उनकी रिक्वायरमेंट छोड़ दी. Are you understanding? So Government of India Act 1935 failed to form a federation. Why? Princely states said no. Government of India Act 1919 failed to form a federation. Why? Provinces never given autonomy and princely states of course said no. Okay. सो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई. हमें नो डायarchy, प्लीज अंडरस्टैंड, कोशिश की गई थी फेडरल लेवल पर डायarchy इंट्रोड्यूस की जाए बट वो कभी भी इन्फोर्स हुई नहीं. ओके, बाइकैमरलिज्म इन सम स्टेट्स से गया. काउंसिल ऑफ इंडिया जो था, तुम्हें याद है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एडवाइजरी काउंसिल, उसको अबॉलिश कर दिया गया. लिमिटेड फ्रेंचाइज अभी किया गया. तुम्हारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ. इस एक्ट ने सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया. ओके, 2 or more than 2 states require request where you could also have joint public service commission. कभी भी पब्लिक सर्विस कमीशन वाला पार्ट इग्नोर मत करना. अब तुम नोटिस करो 1935 में, और थोड़ा सा इमेजिन करो, तुम ब्रिटिशर्स मांग रहे हो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, उन्होंने तो दे दी. अब में बना है ऑल इंडिया फेडरेशन. ऑल इंडिया फेडरेशन के लिए प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स की है कि प्रिंसली स्टेट्स की है? प्रिंसली स्टेट्स तो तुम ही हो ना, रजवाड़े तुम ही हो ना, हिंदुस्तान हो ना. नाउ इफ यू नोटिस कहीं ना कहीं डायरेक्शन लगने लगी है. भाई बिकॉज मैं मांग नहीं सकता ब्रिटिशर्स जो वो हमें दे नहीं सकते. यू अंडरस्टैंड? बट देन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंड. The important thing was हम although हम इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, but for the longest time हमारा पहला आइडिया था कि हम डोमिनियन बन जाए. Okay, डोमिनियन क्या होता है? डोमिनियन होता है when you have political as well as legal independence. Only fact is that the head of the state is the king or queen. Head of the state is king or queen of the imperial power. हमने बोला चलो यार डोमिनियन मिल देते. हमें अब डोमिनियन होगा तो हमें पॉलिटिकल लीगल इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा. जबकि ऑलरेडी हमारी डिमांड पूर्ण स्वराज की हो चुकी है, रिमेंबर. बट अभी हम फेडरेशन ही नहीं बन रहे, डोमिनियन क्या बनेंगे और क्या आगे जाएंगे. हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के डिमांड एन राव साहब ने 1934 में दे दी. कम्युनिस्ट पार्टी के लीड थे, नेहरू वगैरह, एवरीवन वाज आस्किंग कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिले. बट ऐसा हो ही नहीं रहा. व्हाई? बिकॉज़ हमारी यूनाइटेड फ्रंट नहीं बन रहा था, हमारा फेडरेशन नहीं बन रहा था. एंड देन लक फेवर्ड अस. इन यूरोप के मैन कॉल्ड एज हिटलर, जिसने 1940 में ब्रिटेन को अटैक कर दिया. ओके, एंड दैट वाज द बैटल ऑफ ब्रिटेन. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस पार्ट. हिटलर ने लुफ्टवाफे को बोला, अपनी एयरफोर्स को बोला कि ब्रिटिश को हमको पहली बार दो, यू नो, द ब्रिटिश एम्पायर, द सन वाज एटसेट्रा. उसके ऊपर ये चैलेंज हो गया भाई, उसका अपना सर्वाइवल इज एट स्टेक.
नाउ लॉर्ड लिनलिथगाउ उस तरह हमारे वाइसरॉय थे। लॉर्ड लिनलिथगाउ ने बिना हमसे पूछे इंडिया को डिक्लेयर कर दिया और ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया वी डिक्लेयर दैट वी आर एट वॉर विद जर्मनी। ये बड़ा हम लोग बुरा लगा, ये क्या होता है, तो थोड़ा बहुत याद है देयर वाज फाइट ऑफ सत्याग्रह अगेंस्ट इट एंड सो ऑन एंड सो। लेकिन लॉर्ड लिनलिथगाउ ने एक और प्रॉब्लम थी, एशिया में भी अटैक था, दैट इज टू द इंपीरियल पावर ऑफ जापान। लॉर्ड लिनलिथगाउ ने बोला वी आर गिविंग यू ऑन अगस्त 8 1940, इन्होंने हमको एक ऑफर दिया कि डियर इंडियन हमको सपोर्ट कर दो ड्यूरिंग वॉर, ओके, सपोर्ट ड्यूरिंग द वॉर, आफ्टर द वॉर वी विल डायरेक्टली गिव यू डोमिनियन स्टेटस। इस ऑफर को अगस्त 8 1940 का ऑफर बोला जाता है, अगस्त ऑफर। इस ऑफर में सिर्फ प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, नथिंग वाज फॉर्मलाइज्ड। इसी ऑफर को फॉर्मलाइज करने के द न्यूली इलेक्टेड विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ने अपने कैबिनेट से 3 मेंबर्स भेजे, उसको बोला जाता है क्रिप्स मिशन ऑफ 1942। केयरफुली लिसन टू मी, क्रिप्स मिशन में 3 मेंबर्स थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए अलेक्जेंडर एंड पैथिक लॉरेंस। ये पहले क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, ओके, कौन है इस मेंबर से, पढ़ने को पढ़ लो, याद कर सकते हो, नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग। आई भरोसा नहीं है सिविल सर्विस दोबारा ऐसे क्वेश्चंस पूछने लग जाए। ओके, सो यू हैव Stafford Cripps, you have Alexander and Pathic Lawrence. Now Cripps मिशन आया। So Cripps मिशन 1942 में आया, क्या करने को आया? Cripps मिशन आया to formalize the August offer, ऐसे लिख करना, to formalize the August offer। Cripps मिशन आया, बोला भाई इंडियंस हम आपको डोमिनियन देंगे, तुम्हारा अपना डोमिनियन होगा, तुम्हारी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, ओके, तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। लेकिन इफ बड़ा था, ये जो ऑफर है ये कांग्रेस को भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए और ये मुस्लिम लीग को भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मुस्लिम लीग ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। मोहम्मद अली जिन्ना सेड नो, वी वांट अ सेपरेट पाकिस्तान, वी वांट आवर ओन कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली। आर यू अंडरस्टैंड? महात्मा गांधी एंड कांग्रेस सेड नथिंग डूइंग माय फ्रेंड, वी वांट एन अनडिवाइडेड इंडिया। क्रिप्स बोला ये दिखाई दे इफ, ओके, वी कैन नॉट गिव यू दिस ऑफर, वी कैन नॉट फॉर्मलाइज दिस ऑफर until unless both of you accept. Both of them did not accept. Cripps mission went back to London as a failure. Gandhi became very angry about it. Gandhi said, who are you to decide upon हमारा internal matter, you just अपना promise पाओ। But Cripps mission left and Gandhi therefore in retaliation to the failure of Cripps mission in August of 1942 launched the dangerous and the most effective Quit India movement. अब उन्होंने बात की करो या मरो, do or die. This is the last step because Britishers are now playing game with us. Quit India movement hit the Britishers very hard economically, and therefore when the Cripps mission happened, when the Cripps mission failed and the Quit India movement became very very effective, right, 1942, बहुत सारी चीजें पैरेलली होने लगी, okay, बहुत सारी चीजें पैरेलली होने लगी। 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगा, but it left England very very weak. It left England very very weak. ध्यान से सुनते जाओ, right? Now England is weak. Quit India movement is in full blow. They send the cabinet mission, the second cabinet mission of 1946. The second cabinet mission came to India. फिर से सेम चीज के लिए कि we will give you your own constituent assembly, we will give you your own dominion. Please दोनों मान जाओ. That's Congress as well as Muslim League. फिर से जिन्ना साहब बोले नहीं हमको तो हमारा पाकिस्तान चाहिए। मुस्लिम लीग did not agree, but second cabinet mission ने मुस्लिम लीग को एग्री करा दिया। Let us first go for elections of the constituent assembly. I hope you understanding जिस चीज का हमें कितने 100 सालों का इंतजार था, that became the constituent assembly का elections हुआ in June of 1946. The elections started happening. It happened by indirect election, proportional representation. Please understand, people of India never voted for this. Okay, your member of provincial legislative councils. ये proportional representation था. For every 10 lakh Indians, there was one seat in the constituent assembly. उस टाइम हमारी 39 करोड़ population थी, उस हिसाब से it was 389 number of the constituent assembly, जिसमें 296 was supposed to come by election, 93 was supposed to be nominated by the princely states, जब रिजल्ट आया फाइनली तो रिजल्ट कैसा? इंडियन नेशनल कांग्रेस wins 208, मुस्लिम लीग wins 73, others win 15. मुस्लिम लीग को लगा अब हमारा पाकिस्तान कभी नहीं बनने वाला। जिन्ना did not feel good, मुस्लिम लीग decided to boycott। जिस दिन हम फर्स्ट डे बैठे 9 दिसंबर 1946 को, the first day of the session हुआ, उस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ 211 थे। ये नंबर्स याद रखना, it can come very handy। So 9 दिसंबर 1946 को हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट सेशन हुआ। सच्चिदानंद साहब became टेम्पररी प्रेसिडेंट। टेम्पररी प्रेसिडेंट आने का तरीका लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को प्रेसिडेंट बनाया। 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी। So B.N. Rao became our legal advisor. ये please सबके नाम याद रखो जहाँ Dr. B.R. Ambedkar of course became the chairman of drafting committee, which was a 7-member committee established on 29 August 1947, जिन्होंने तुम्हारा constitution draft किया। Constitution का trivia याद रखना, the original constitution में 395 articles थे और 8 schedules थे। 13 दिसंबर 1946 को स्टोरी साथ ध्यान से सुनते जाओ। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी उठे और नेहरू जी ने मूव किया, इंट्रोड्यूस किया एम्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो बहुत टाइम के बाद तुम्हारे प्रियम्बल का सोर्स बना।
एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिस दिन हुआ ना फ्रेंड, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लोग लार्ज हार्टेड लोग थे, इन्होंने बोला कि नहीं यार ये ठीक नहीं हो रहा, मुस्लिम लीग हमारे दोस्त है, हमारे भाई है, वो लोग नहीं है यहाँ पर। तो एक मैसेज भेजा गया 13 दिसंबर 1946 में, ये मूवमेंट हुआ कि जिन्ना सब वापस आइए, वो बाइकआउट करके बैठे वापस आइए। जिन साहब घर के बाद उन्होंने जबकि प्रॉमिस किया था 20 जनवरी 1947 वो आ जाएंगे, कैलेंडर ध्यान से रखो, ओके, लेकिन वो आए, ओके, और इनफैक्ट राइट्स और ज्यादा होने लगे। इसलिए हम लोगों ने ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया, ओके। नाउ द सिचुएशन वाज स्टिल वेरी 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 वोलेटाइल, और फिर दुनिया में कुछ और बदलाव आ गया। और दुनिया में क्या, ऑन फरवरी 20, 1947 द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने एक रेडियो अनाउंसमेंट किया कि हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जून 1948 मैक्सिमम इंग्लैंड यहां से चले जाएगा। हम इतने सालों इंतजार कर रहे थे भाई ये लोग कब जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे। जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया हम बड़े घबरा गए, इतनी जल्दी जाओ। रीजन ये था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, रीजन ये था बस हम लोग रेडी नहीं थे। रीजन ये था कि सिविल वॉर लाइक सिनेरियो पड़ा, हिंदू मुस्लिम राइट्स होने का चांस है। क्लेमेंट एटली ने इसको हम बचाने के लिए लॉर्ड माउंटबैटन भेजा, और लॉर्ड माउंटबैटन ने 3 जून 1947 को एक प्लान दिया, इसको पॉपुलरली माउंटबैटन प्लान या 3 जून प्लान बोलते हैं। और उस दिन उन्होंने जिन्ना साहब बोला जिन्ना साहब आओ, नेहरू जी जिन्ना सब बैठिए, क्या चाहिए, तो जिन्ना सेट पाकिस्तान फर्स्ट टाइम एवर, ना क्रिप्स मिशन है ना कैबिनेट मिशन, फर्स्ट टाइम एवर लॉर्ड माउंटबैटन ने पाकिस्तान की डिमांड एक्सेप्ट करी। दिस वाज द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश एक्सेप्टेड द कांसेप्ट ऑफ पाकिस्तान एंड वी स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस अपने आप हो नहीं सकी क्योंकि माउंटबैटन एक एग्जीक्यूटिव थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने साइन करना था। एंड इन जुलाई ऑफ 18 को हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुए देखा, और वो एक्ट था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसने बोला कि ऑन द अपॉइंटेड डे ऑफ 15 अगस्त 1947 देयर विल बी एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। इंडिया एंड पाकिस्तान दो ओन ऑटोनॉमस डोमिनियंस बनेगा, और हिज मैजेस्टीज और हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट अब नहीं होगी। अब कोई वाइस रॉय नहीं रहेगा, एंड द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन नहीं रहेगा। द गवर्नर जनरल अपॉइंट होगा तब तक जब तक इंडिया या पाकिस्तान रिपब्लिक नहीं बन जाता या फिर अपना ओन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। आई होप यू अंडरस्टैंड, वी रिमेन डोमिनेंट till the day we had our enforcement of constitution, that is 26 January 1950. लॉर्ड माउंटबैटन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बोला कि हमारे गवर्नर जनरल बनेंगे, ईच डोमिनियन की अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी, ईच डोमिनियन अपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कंप्लीटली फ्री होंगे, नंबर 1। नंबर 2, आज के बाद नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्सटेंडेबल होगा टू एनी डोमिनियन अनलेस डोमिनियन खुद बोल के हम करने हो या करने हो। This was lapse of British paramountcy। वो जो पुराना दुकान ना, I hope remember the princely states का, तो बार बार नो बोल रहे थे, इस डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी के बेसिस पे बोल रहे थे। ब्रिटिश ने बोला तुम्हारी मर्जी, तुम जो करना है, हम ही हट रहे हैं इस सेगमेंट से। This was lapse of British paramountcy। Now the princely states were said इंडिया ज्वाइन करना, इंडिया ज्वाइन करो, पाकिस्तान ज्वाइन करना, पाकिस्तान ज्वाइन करो, इंडिपेंडेंट रहना है, इंडिपेंडेंट रहो। Now this was open during this period of time। तुम नोटिस करो 1947 से 1950, इनफैक्ट 1946 से लेकर 1950 तक तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ही था। तो उस टाइम पर इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन कौन था? उस टाइम तक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और वो ऐसे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन, देखो ये तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 395 आखिरी आर्टिकल, ओके, आर्टिकल 395 यानी कि ऑन 26 जनवरी 1950 व्हाट डिड राइट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 is hereby repealed। In other words, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और एनफोर्स हुआ उस दिन हमने रिपील कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो जब तक था was interim constitution of India। आप यू अंडरस्टैंड, ये बड़ा डेंजरस क्वेश्चन है। कुछ डेट याद रखना, the date that is written on the preamble, that is 26 November 1949, उस दिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन did not come into force। 5, 6, 7, 8, 9, 16, 24 ये आर्टिकल्स came into force on day of preamble, rest came on the force of 26 January 1950। इसको बोलते हैं commencement of the constitution। I hope तुम्हें ये सबको मालूम है कि 26 जनवरी 1950 ने जानबूझ के लिखा because to commemorate with पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन जो 26 जनवरी 1930 में हुआ था। So I hope you understand there was a political inclination on this part। Either ways, कुछ criticism थी with हमारी constituent assembly के लिए, it was not a sovereign body। सेकेंड कैबिनेट मिशन ने इसको परमिशन दी थी, ओके। ये जब सेशन भी होते थे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट अलाउ कर रहा था। इट वाज मोस्ट कांग्रेस डोमिनेटेड, ओके, ऑब्वियस 208 नहीं करें। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बोला गया कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, बहुत टाइम लग गया इनको बनाने, पूरा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन 3-4 महीने बन गया था, तुम इतना साल लग गया। एंड इट वाज नॉट एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बिकॉज़ इट वाज इनडायरेक्ट इलेक्शन। However, but I think ये criticism ठीक है, we can take every criticism in healthy spirit, लेकिन point was it did a beautiful job at making a very strong constitution, okay? This is a very crucial part। criticism आएगा तो ये 4 at least लिखने चाहिए, okay?
नेक्स्ट टाइम व्हेन वी डू वी विल सी, जो मैंने अभी बोला कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिड अ वेरी ऑसम जॉब, हम पढ़ेंगे व्हाट आर सिलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारे लिए बनाया। ओके, सो वी विल डू दैट पार्ट, बट वो तो नेक्स्ट पार्ट है। तो मेरा पार्ट है ना वो ये है माय फ्रेंड्स। कहां चल गया वो पहला दिन था, कहां चला गया? दिस वाज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। तुमने नोटिस किया, तुम ये बात समझाते मुझे इतना टाइम लग गया, एंड आई डोंट इवन नो कि अभी तक मैं वो क्लियरली सी पेन हुआ कि नहीं। वो प्रैक्टिकली है, अभी इट्स ओनली थ्योरेटिकल, टेक्स टाइम। इमेजिन द इंपॉर्टेंस द जीनियस ऑफ पीपल लाइक महात्मा गांधी, जिन्होंने तब इस देश को समझा दिया इतना टेक्निकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉर्ट आउट करेंगे विदाउट नोइंग कि हम कैसे कॉलोनी से फेडरेशन बनाएंगे, फेडरेशन से पहले प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लेंगे, स्विट्जरलैंड एग्रीमेंट से हटेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से हटेंगे, डोमिनियन बनेंगे, इंडिपेंडेंस मांगेंगे, रिपब्लिक बनेंगे। ये बात जब तक तुम कम्युनिकेट नहीं करोगे फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ, फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट, तुम ब्रिटिश से कैसे डिमांड करते? इमेजिन द जीनियस ऑफ दीज पीपल, दीज लीडर्स ऑफ आवर, जिन्होंने 7% लिटरेसी वाली इस कंट्री को एक साथ मोटिवेट किया, explaining these terms in the simplest possible ways to make them into a practical action. I hope you understand, my friends. तुम्हारे मुंह से निकल जाना चाहिए। Say a silent thanks to these leaders. Say a silent thanks to the father of the nation. कि ये leadership के ना, it would have been impossible for us to throw our British, because जो British थे had not come here by military power, they had come by political and legal battle. Okay, so this is how we ultimately got our independence. Next time we will study at the salient features of the Constitution. आज का topic हम करेंगे सारे salient features as given in the बुक एज इट। सो अपनी बुक लो, ओके, साथ साथ करते रहेंगे। जहां पर मुझे ऐसा लगेगा कि आई हैव टू ऐड समथिंग, हैव टू सबट्रैक्ट समथिंग, वो मैं खुद करूंगा। सो फोकस ऑन दिस। द फर्स्ट सेलिएंट फीचर इज इट इज अ लेंथी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले इसको समझ लो, ये एक बड़ी मेजर है कि हमारे बड़े से नासमझ परिंदे जो एग्जाम दे जाते हैं ना आईएएस के, उनको लगता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ओके, बहुत सारे लोग होते हैं। First of all, you should know that America was the first one to write the written constitution, make a written constitution. Unwritten का मतलब ये नहीं होता, my friends, लिखा नहीं हुआ। Unwritten का मतलब it's very flexible. It is very easy to change. British constitution is based upon the previous judgments, conventions, customs, traditions पे based है। It can keep on changing. इसलिए उस unwritten constitution बोले। तो प्लीज ऐसे हम सोच लें किसी दिमाग में या डिजिटल लिखा हुआ है सब नहीं that, वो पता नहीं क्या दिमाग में खाली पुआ बना लेते हैं। Don't do that part. Okay. So the point here is it is an unwritten constitution. This is the written constitution. इंडिया भी अडॉप्ट किया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और इसको लेंथीएस्ट बना दिया। हमारा सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। भाई ऐसा क्यों लिखा आपने, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा? इसलिए लिख दिया बिकॉज़ ज्योग्राफिकल रीजंस है। लुक द साइज ऑफ इंडिया, राइट, नंबर 1, लुक एट द वैरायटी ऑफ इंडिया, लुक एट द नंबर ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट दैट इज प्रेजेंट इन इंडिया। सो द पॉइंट हियर इज दैट यू विल हैव टू केटर टू द नीड्स ऑफ एवरीवन। सो ज्योग्राफिकल रीजंस से। दूसरा, हम यूनियन और स्टेट लिए एक साथ ही लिख दिया, तो भाई डबल तो गई। यू अंडरस्टैंड? यूनियन स्टेट से कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, अलग सब कंट्रीज जहां पे यूनियन के अलग फेडरल लॉज अलग है, स्टेट लॉज अलग है। फिर एक और बात है, ये थोड़ी बहुत हमारी बीमारी है। ओके, लॉयर्स एक बात को बोलने के लिए उसको कवर अप करते हैं चारों तरफ से। वी यूज द वर्ड whereas, hence, henceforth, notwithstanding, despite, what is that trying to, कि हम कोशिश करते हैं that लैंग्वेज थोड़े से ज्यादा हो जाए बट सारे लूपहोल्स कवर हो जाए। तो थोड़ा सा आइडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज प्राइमरली डोमिनेटेड बाय लॉयर्स। ओके, इनफैक्ट ग्रेट डॉक्टर अंबेडकर हिमसेल्फ, इसलिए वाज वन ऑफ द रीजन। तीसरा, एक बहुत मेजर सोर्स था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का was the गवर्नमेंट इंडिया 1935। मैंने पिछली बार दिखाया, अगर तुमने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें था गवर्नमेंट इंडिया 1935 द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रीलिम्स क्वेश्चन है फॉर दो व्यूअर्स जो नहीं लग रहा है। ओके, ये इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्वेश्चन आता है। गवर्नमेंट इंडिया 1935 हमारा मेन सोर्स, अबाउट 55% हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जीओ 1935 से ऑलमोस्ट लिया गया। सो दिस वाज, जो खुद ही इतना लंबा था तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो भी तो हिंदी होगा। जीओ 1935 भी बहुत लंबा सा पोर्शन था, लेंथी आर्टिकल, लेंथी लॉ व्हिच पास द ब्रिटिशर्स, क्योंकि वी डिराइव्ड इट